Good morning, students. So, today we are going to discuss about chapter number 8. Okay, so excitement to go by a bus. I remember about my childhood. If we supposed to go by a bus, so we need to walk almost 3 to 4 kilometers. Then after we would catch the bus and we would go to the particular place where we want. So when I knew that and tomorrow I am going to sit in the bus, so I was getting a lot of excitement and that night I couldn't sleep. Okay, that night I couldn't sleep. I was waiting that moment when morning would come and we would go to catch the bus. That was my childhood experience when I was just 3 or 4 years old. Okay, we were living in a village. So through that way there was no bus, but if we have to reach the bus station, so we have to walk almost 3 or 4 kilometers. Like the same way, in this chapter we see this is Madam Ride the Bus, chapter number 8, class 10th, book of first flight, and ask for the CBSE students. Here we can see a girl, one who used to stand at the doorstep and she used to look the bus. A bus comes to their village and goes through their village, and once again it would return to the city. Actually, buses are always coming from the city to village, and once again they reached to the city. And that is the bus's daily routine, comes from the city and goes to the city. At the same time, the girl was always watching to the bus, and those persons they are going to city and coming back by the bus. She used to ask them many things, and she had a great desire to go by that bus one day to the city, and she would return from the city. And because of that reason, she started to save money. Okay, she started to save money. She's supposed to purchase different things, and she might have getting money from the guests who have come to their house, and she's supposed to get money from her parents. But all that she was saving, because one day she would go by the bus to the city and she would come back. That is the main story, and it was the desire of heart's desire of a young girl or a little girl, and how she went to the city by the bus, and how she returned from the city to the village. That story here written. Okay, so let us discuss about this chapter, summary only, not whole explanation. If newly you are watching my video, so please subscribe this channel. So this video will be Hindi and English, both language will be there. So मैं क्या कह रहा था कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 8 है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो बुक है आपका फर्स्ट फ्लाइट, और क्लास 10th के लिए जो बच्चे खास करके CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, यहाँ पे बस में चढ़ने का एक विशेष उत्साहित वाली बात है, एक्साइटमेंट वाली बात को हम देखते हैं।
मेरे स्टोरी को मैं कह रहा था कि किस प्रकार मैं जब 3 इयर्स का या 4 इयर्स का था, उस समय यदि हमें बस पकड़ना होता था तो हमें करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, और वहाँ हमारा बस स्टॉप आता था और वहीं से हम बस पकड़ते थे और जहाँ पे जाना होता था हम जाते थे। तो जब कभी मुझे ये पता चलता था कि कल सुबह बस में जाना है, तो उस रात मुझे नींद नहीं आती थी और मैं उसी रात को बहुत ही एक्साइटेडमेंट होकर के इंतजार करता था कि कब सुबह होगा और हम जाएंगे। तो एक्चुअली वो बस जो है रात को 4 बजे वहाँ से निकलती थी, और तो ये मान के चले कि रात को तकरीबन 1-1:30 बजे लोग जो उस बस में सफ़र करना चाहते हैं वो अपने गांव से, हमारे गांव से पैदल चलेंगे और बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद वो बस में बैठेंगे। तो जब हम पैदल जाते थे और बहुत एक्साइटमेंट था उस समय, और बहुत रोचकपूर्ण था उस समय, और मैं कभी वो बचपन की बातें को नहीं भूलूँगा, है ना। जब दूर से मैं बस को देखता था तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि भाई आज तो मुझे बस में चढ़ना है। तो ठीक ऐसा ही एक लड़की के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, जो यंग लड़की है, छोटी सी लड़की है, वो हमेशा अपने डोर स्टेप में खड़े होती थी और उसकी गांव में एक बस आती थी, गांव की तरफ से होकर के दूसरी जगह जाती थी, फिर वापस वो शहर में जाती थी बस। और उस बस को वो रोजाना क्या करती थी, देखती थी, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई प्लेमेट नहीं थे, है ना, कोई खेलने लायक दोस्त कोई नहीं थे, और इसीलिए वो क्या करती थी कि उसका एक प्रकार के टाइम पास होता था, घर के सामने हमेशा खड़ी होती थी और देखती थी, और मन मन में ये इच्छा वो रखती थी कि एक ना एक दिन उसको क्या करना है, बस में जाना है। एक दिन डेफिनेटली वो बस में जाएगी और एक दिन डेफिनेटली बस में चढ़ेगी। तो ये चाहत को रखते हुए वो क्या करती है कि पैसा सेविंग करने लगती है। जो भी पैसा उसको मिलता है कहीं कहीं से, वो पैसा को वो कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद फिर वो जमा करके रखती थी। अपना जो अदर जो एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस को वो रिड्यूस कर देती थी, कम करती थी, और कम करके वो क्या करती थी कि वो पैसा को वो बचा करके रखती थी, और बचा करके रखने के बाद फिर उसका मन में यही था कि एक दिन मुझे बस में जाना है। सो ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। दिस इज सेंसिटिव स्टोरी ऑफ एन 8 years old girl. Okay, the age of the girl was 8 years, or whose name is Village. Okay, that was her first journey into the world outside her village. At a very tender age, she tried to understand the mystery of life and death in her own turn. ये उसके अंदर एक इच्छा था कि वो बस में जाएगी और बस में चढ़ेगी, और ये 8 साल की लड़की है। एक समय आता है जो अपने गांव से वो बाहरी दुनिया की ओर बस में चली जाती है, और अपना जीवन काल में ही वो उस बात को अंडरस्टैंडिंग करती है कि दरअसल मृत्यु क्या होता है। जो मृत्यु का रहस्य है उस चीज़ को वो क्या कर लेती है, समझ लेती है, देखती है अपनी आँखों से। तो आइए देखते हैं क्या होता है। समरी हम पढ़े। मैडम राइट्स द बस इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल whose age is 8 years old. So it is first time out her village by a bus. It was first experience for her. ये उनके जीवन के लिए एक पहला अवसर था और पहला अनुभव था कि वो अपना गांव छोड़ करके किसी बाहरी गांव में जाएगी, और किसी बाहरी गांव में जा करके वो घूम फिर करके आएगी। ये उसके जीवन के लिए एक पहला एक्सपीरियंस था। सो Valley Valley for short was 8 years old. She wanted to know number of things. Okay.
वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। शी हैड नो वन टू प्ले विथ, उसके साथ खेलने के लिए कोई थे नहीं। ए बस रन बिटवीन हिज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन एंड वेरी लॉन्ग टू ट्रैवल बाय दैट बस। ओके, एक बस जो होता है क्या करती है कि उसके गांव में होकर के गुजरती है, तो उसके हृदय में ये इच्छा रहता है कि वो डेफिनेटली उस बस पर चढ़ेगी, ठीक है, डेफिनेटली वो बस में जाएगी। लिसनिंग टू द पीपल दोज हु हैव ट्रैवल्ड बाय द बस as they are coming to their home, she used to ask the people how was the experience, okay, and what is the fare of the city. Everything whatever he wanted he asked to the people. जो लोग बस में सफ़र करके आते थे उनसे वो पूछा करते थे कि वहाँ जाने के लिए कितना फेयर लगता है, शहर में जाने के लिए कितना किराया लगता है, बस में आने का एक्सपीरियंस क्या है, ये सभी चीज़ों को वो पूछती है। और पूछने के बाद फिर वो क्या करती है कि और वो एनफ मनी इकट्ठा कर लेती है। सी गैदर्ड एनफ मनी एंड as much she needed or as much she wanted, she gathered the money for the traveling, or when she had the required money she went on the bus. Okay, that was her desire. So when she would collect required money, suppose 60 rupees, one side 30 rupees, another side 30 rupees or paisa, whatever. So when she would get that and when she would feel that requirement, then she would start to journey. She would start to go by the bus. That was her desire. वो पैसा इकट्ठा कर रही थी, कितने उसकी आवश्यकता है उसके आधार पर। जब उसका आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, यानी वो जितने पैसे इकट्ठा करना चाहती थी, जब उतने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेगी, बस में जाएगी। तो वो दिन आ गया, ठीक है ना, वो दिन आ गया। अब वो बस में जाने के लिए चढ़ जाती है, सुबह सुबह के समय था वो, ठीक है। द कंडक्टर वॉज सरप्राइज टू सी ए लिटिल गर्ल, हाउ डेयर सी टू टू गो बाय द बस। कंडक्टर एक छोटी लड़की को देखता है और सोचता है कि एक छोटी सी लड़की है, कितनी साहस है उसके पास जो वो बस में जाती है, चढ़ती है ना। और उसके बाद उसको जॉकिंगली क्या करता है, वो मैडम करके बुलाता है ना। बाय जॉकिंग सी कॉल्ड हर मैडम। सो शायद इसी के लिए मैडम राइड द बस ये टाइटल ही हो चुका है। सो मे बी फॉर दैट रीजन द टाइटल इज बीइंग हियर मैडम राइड द बस, बिकॉज द कंडक्टर जॉकिंगली कॉल्ड हर मैडम। And the girl went up to the bus, okay, and she was offered to sit front seat. उसके बाद उसको फ्रंट सीट में बैठने के लिए कहा जाता है। और Philly observed everything very carefully. Okay, she was observing very carefully the trees that seemed to go back, okay, and running toward them a cow that suddenly moved in front of the bus, and so on. Everything she was watching very carefully. जब वो बस में बैठी और उसको पहला सीट उसको दे दिया गया, और पहला सीट उसको देने के बाद वो बस में, दैट वाज मॉर्निंग टाइम और ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, है ना, देयर वर नो मोर पैसेंजर्स, so that she got very a good seat to stand front side and look front. Okay, वो अभी आगे देखते हुए जाती है, जाते जाते उसे ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। और जाते जाते एक गाय जो है बस के सामने आता है और वो इस तरह से बस आगे चला जाता है। ये दृश्य को भी वो देखती है।
When they reached the town, they reached means the bus reached the town. Valley kept everything in amazement and a big shop and so on. अब सिटी आ गया. सिटी आने के बाद क्या होता है कि वैली जो है वो सभी चीज़ को देखती है बड़े ध्यानपूर्वक और थोड़ा अमेजिंग होती है. ओके, शहर में जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग दिखती है. शहर में जाते तो बाजार बहुत सा दिखता है. कलरफुल शॉप सारा दिखता है ना. सो देयर इज कलरफुल शॉप, टॉल बिल्डिंग्स, एवरीथिंग है ना इनसाइड ऑफ ए सिटी or a town. When a people newly looks, when a person newly looks that, definitely he or she would be amazed for that. और निश्चित रूप से ये उनके लिए एक अमेजमेंट का बात रहेगा. The conductor asked her to go down and look at the sight, but Valley refused. She said that she had come only for the bus ride. The conductor offered to buy a cold drink for her, but she refused. She was alone there, nobody was with her. So that is why the conductor said to him, the bus will be stayed here for some hours. If she wants to go out and if she wants to see the sight of the city, so she can see that. And the conductor offered her to bring cold drinks or something else, but she refused everything, and finally she said that she came only for riding the bus, not to roam the city or not to purchase anything else. She refused that very clearly. जब बस सिटी में रुकता है, रुकने के बाद कंडक्टर उसको ये ऑफर देता है, ये कहता है कि देखो अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ और जाकर के शहर को थोड़ा देख लो, और या तो फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स से उसे पी लो, कुछ भी करो. लेकिन लड़की जो है वो क्या करती है, रेफ्यूज़ कर देती है. वो नहीं चाहती कि क्या करने के लिए कि बाहर के दृश्य को, मतलब वो उतरने के लिए नहीं चाहती, क्योंकि दैट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस. दैट वाज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस. वो उसके जीवन के लिए पहला एक्सपीरियंस था. तो शायद उसी के चलते वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से नीचे उतरने के लिए. फिर उसके बाद फिर क्या होता है, आफ्टर देन व्हाट हैपेंस देयर, शी सेड दैट शी केम फॉर द बस राइड ओनली. द कंडक्टर ऑफर्ड हर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा, बट शी रेफ्यूज्ड. देन वी सी अनदर. On the journey back, Willie saw young cow tied by roadside. When they were going to city, so there was a cow that had come in front of the bus. And now when they were returning from the city to the village, and she has seen that the cow died, and that was side of the road, laid by the side of the road. सुबह के समय पर जैसे वो जा रही थी, तभी एक क्या होता है कि एक काव जो बस के सामने आ जाता है, और फिर जैसे वो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सिटी पहुंचते हैं, पहुंच कर के वापस आते हैं. वापस आने के समय देखती है तो क्या देखती है कि वो जो काव है वो मर चुकी होती है और रोड साइड में पड़ी हुई दिखती है. तो द कंडक्टर टोल्ड विली दैट इट वाज द सेम काउ दे हैड सीन अर्लियर. नाउ कंडक्टर एक्सप्लेन्ड दैट द मॉर्निंग टाइम व्हाट दे हैड सीन टू द काउ, एंड दैट इज द सेम काउ. सुबह के टाइम पर जो काउ को देखे थे वही काउ ही यही है. बिली फेल्ट सैड. द मेमोरी ऑफ द काउ haunted her. When they reached the village, the conductor told her, come again, but to remember to bring the fare. Okay, so when she reached, and she couldn't forget about the incident of the car, and after reaching the village, she got down
and the conductor told him again, if you want so you can come, but don't forget to bring fare. लेकिन आप कभी भी जो किराया है लाना मत भूलना। जब वो लड़की उतर जाती है, उतरने के बाद उसको बहुत ही मतलब उस गाँव के बारे में सोच करके बड़ा दुख लगता है ना। When Belly reached home, she found an auntie with her mother. Her mother asked her where she had been. Belly did not reply, but only smiled secretively. He reached to her village. At the same time, he reached her home, and as she was about to enter the home, there was an auntie with her mother, and her mother asked her, where did she go? She didn't answer and smiled and entered to the house. तो यहाँ पे देखते हैं कि वो गांव पहुँचती है। खाली उतना ही नहीं बल्कि गांव पहुँचने के बाद वो क्या करती है कि मतलब जैसे अपने घर की ओर जाती है और जाते समय देखते हैं कि उसका एक आंटी है जो उसकी मदर के पास है, और मदर अभी उससे पूछती है कि तू कहाँ गई थी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है, मुस्कुरा करके घर के अंदर चली जाती है। तो यही था, और इसका जो मेन स्टोरी है, और हम जानते हैं कि ये स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं, बहुत छोटा सा स्टोरी है ना। सो ओके, may God bless you. If yet you haven't subscribed my channel, please subscribe and hit the bell icon also. Thank you. May God bless you.